माय नेम इज़ डॉक्टर आतिफ मुनीर, आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में बेस्ड हूँ। और आज हमने बात करनी है द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। बड़े अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट तो बहुत ही अरसे से कर रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन जेल, टॉपिकल टेस्टोस्टेरोन फॉर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो, बट फाइनली इट हैज़ मेड इट टू द मार्केट एंड थैंक्स टू एस्पेन फार्मास्यूटिकल्स। एडवांटेजेस क्या हैं और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है, विल जस्ट गो थ्रू इट इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल. So that's me. This has already been done. So briefly थोड़े से एक्सिस को देख लें. जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस है, बिकॉज हाइपोगोनाडिज्म डायग्नोज करना तो आसान है, बट ये भी थोड़ा सा देखना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है. सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सो हाइपोथैलेमस से है जी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, दैट गोज टू द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहाँ से FSH और LH रिलीज है. FSH इज बेसिकली फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. जो LH है दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग Leydig cells in the testes which produce testosterone. So both functions are really important. Hypogonadism can either be decreased testosterone production, decreased sperm production, or both. और जब भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, so we really want to make sure कि ये hypogonadism तो है ही है, that's a low testosterone या low sperm count, but where is the exact lesion? Primary है कि secondary है? So primary hypogonadism is if the problem is at the level of hypothalamus या pituitary. Secondary is where the problem is at the hypothalamus or pituitary, and primary is where the primary problem is with the testes. So इसको थोड़ा सा evaluation में आगे जाके discuss करेंगे. This is something we are all aware कि what testosterone is responsible for. So apart from libido and sexual function and reproduction, lot of other functions, जिसमें से कुछ चीज़ें जो कभी कभार निगलेक्ट हो जाती हैं, खासतौर पे मेल्स में, फटीग, टायर्डनेस, मसल मैस, मूड चेंजेस. So mood changes is also quite important, and sometimes it can, because we see a lot of it, so sometimes mood changes and fatigue and decreasing muscle mass may be the only manifestation of hypogonadism rather than the typical erectile dysfunction, which might come late, which might come very late. So causes, primary, secondary दोनों में congenital भी हो सकते हैं, acquired भी हो सकते हैं. Primary are usually congenital and secondary are usually acquired in clinical practice. So primary में Klinefelter और कुछ और syndromes हैं where there is no testosterone or sperm production right from birth. There is no development. So वो जो है usually they present to us with delayed puberty. So primary usually presents to us with delayed puberty या short stature. Early on अगर pick हो जाए, और वालिदैन usually लेके आएंगे बच्चों को कि जी delayed puberty है. सेकेंडरी यूजली जो कॉजेज हैं वो यूजली सेकेंडरी उसके हाइपोगोनाडिज्म के अक्वायर्ड होते हैं. कंजेनिटल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म आर रेयर, अक्वायर्ड कॉजेज आर मोर कॉमन, और उसमें सबसे ज़्यादा ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया विच मे और मे नॉट बी ड्यू टू अ पिट्यूटरी ट्यूमर, they are pretty common. So looking for a cause or finding a cause is step 2. First step is to establish कि hypogonadism है कि नहीं. Second step is whether it is primary or secondary, and this will probably be the third step कि cause क्या है, and this will go in parallel with testosterone replacement. जहाँ हम ठीक है हमने evaluate कर लिया कि primary है या secondary है, so we start treatment and then we look for a cause as well if we can find a cause. Or sometimes 20%, 30% में there may not be any cause. It's like most other things के idiopathic, but we want to make sure कि हम rule out जरूर कर लें जो common causes हैं. For example, पिट्यूटरी ट्यूमर है तो हाइपोगोनाडिज्म को तो ट्रीट करना ही करना है. The tumor also needs treatment, otherwise उसके consequences अपने हो सकते हैं. जो congenital causes हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, we can't do anything about the cause, but we can treat, but at least rule out is a must. So प्राइमरी है उसमें कम से कम एक कैरियोटाइपिंग जरूर होनी चाहिए, Klinefelter वगैरह, because it has got implications for future
फर्टिलिटी एज वेल आप काउंसल कर सकते हैं कि भाई दिस एंड दैट, सो दैट हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर फर्टिलिटी. Okay, so then there's a term organic versus functional hypogonadism. Organic is where there is true, जिसे कहते हैं ना कि प्रोडक्शन डिफेक्ट है, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है. फंक्शनल इज वेयर देयर इज नो ट्रू प्रोडक्शन डिफेक्ट बट देयर इज अ रिलेटिव फंक्शनल डिफेक्ट, नॉट एन एब्सोल्यूट फंक्शनल डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल, कॉमनेस्ट एग्जांपल जो हम एवरीडे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो है ओबेसिटी एंड डायबिटीज. Any chronic illness or आपको diabetes is on the rise, obesity is on the rise. So obesity हो या diabetes हो, that can cause a functional hypogonadism state, जिसमें numbers may not be that low when you do the biochemistry. So patient typically complaining of fatigue, tiredness and erectile dysfunction. जो अब आप उसका hormonal profile कराएंगे तो वो कोई इतना ज़्यादा low नहीं होगा, kind of borderline low, lowish होगा. This is due to lot of other changes that are going on. It's a functional state of hypogonadism. Functional means के there is no true deficiency, but there is relative deficiency due to some other things being released, adipocytokines, etc., which kind of mildly suppress the whole hypothalamic pituitary gonadal axis. So that is why we keep pushing people with diabetes who are obese, lose weight, control your diabetes. Any chronic illness which is uncontrolled can cause this functional state of hypogonadism. इसलिए आपको अक्सर आपके जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं, स्पेशली अगर वो ओबीस भी हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आप उनका हार्मोन प्रोफाइल कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं मिलेंगे. दे विल बी लाइक लोइश या लो नॉर्मल या बॉर्डरलाइन काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड दैट्स मोस्टली फंक्शनल बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरवेट, ओबीस एंड देयर क्रॉनिक कंडीशन बीइंग नॉट वेरी वेल कंट्रोल्ड, स्पेशली डायबिटीज व्हिच इज सो कॉमन. जिसका लोग ये स्लैब पर लाते हैं तो आप ये प्रेफर करेंगे कि जो डायबिटीज के पेशेंट हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे आते हैं, कराना चाहिए ये टेस्ट उनके? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. सर हर एक का तो नहीं और शुरू में तो बिल्कुल नहीं. इनिशियली तो अगर देखेंगे कंट्रोल कैसा है, डायबिटीज कंट्रोल कैसा है, वेट कैसा है, इनिशियली तो वही वेट मैनेजमेंट, ग्लाइसीमिक. अक्सर लोगों का आप सिर्फ ग्लाइसीमिक कंट्रोल ठीक करें तो उनकी इरेक्शंस बहुत बेहतर हो जाती हैं. अगर ग्लाइसीमिक कंट्रोल भी अच्छा है, वेट लॉस की अटेम्प्ट्स हो रही हैं या चलें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एंड यू गिवन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल वो सिल्डेनाफिल, वेल्डन वगैरह आपने दे दी हैं और उस पर भी कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, देन यस, नॉट एज अ फर्स्ट ऑफ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये हाइपोगोनाडिज्म मिलेगा. हर एक को टेस्टोस्टेरोन देना बनता नहीं है इस केस में. फंक्शनल की बात करें तो नॉट एज अ फर्स्ट लाइन. लाइफस्टाइल, इम्प्रूव डायबिटीज कंट्रोल, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, हाँ उसको भी अगर नॉन रिस्पॉन्सिव है देन नेक्स्ट स्टेप डू असेस, उनके लेवल्स वगैरह असेस कर लें. अदरवाइज तो आपको पता है ये दिस इज सच अ कॉमन सिम्टम. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हाइपोगोनाडिज्म, ये फंक्शनल, बॉर्डरलाइन, माइल्ड जब आप उनके वो कराएंगे. एंड नॉट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन इन दैट केस, वो जो फंक्शनल. सो इसलिए द अदर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट. थैंक यू. So usually people would disclose themselves कि जी ये भी हो रहा है, and the main presenting feature would be erectile dysfunction. But as we've seen कि testosterone has other roles as well, lot of other roles. So if you want to use a standardized questionnaire, this is the most commonly validated questionnaire that is used. It is not very common that we use in clinical practice, but clinical practice में usually you go with erectile dysfunction, morning erections are there or not, how's the mood, libido, etc. And all these are usually symptoms of hypogonadism. But as you can see, ये ऐसे non-specific हैं कुछ चीजें erectile function. Exactly. So ये चीजें सिवाय erectile dysfunction के there is nothing, no symptom out of all these जो बिल्कुल पैथोनोमोनिक हो के नहीं, ये तो आता ही hypogonadism में. हमें तो हर पेशेंट यही कह रहा होता है, आई एम टायर्ड एंड फटीग्ड. अब वो विटामिन डी भी हो सकता है, वो डिप्रेशन भी हो सकता है, डायबिटीज इटसेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो भी हो सकता है. सो मरीज तो कहता है मैं कमजोर हूँ, ये है वो, तो उसकी बेगम कहती है मलक साहब वो भी तो बताएं. तो फिर मलक साहब बाद में बताते हैं. एग्जैक्टली. वो सर सिम्टम ही ऐसा है कि वो बाद में ही बताया जा सकता है. तो वो शुरू में इतना कॉन्फिडेंस पेशेंट में भी नहीं होता, और शुरू में हमें भी पूछते हुए कुछ होता है. वी ऑल्सो कीप इट टू द लास्ट के ओके एंड पे ये भी पूछेंगे. सो बट यूजली मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन वुड बी. अब द वर्कअप जो है ना, ये बाकी वर्कअप तो आई थिंक वी कैन स्किप. अगर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है जो कि किसी नॉन
पुरानी क्रॉनिक कंडीशन के साथ है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म है, या अगर तो नॉन है फिर तो ठीक है। अगर कोई नॉन कंडीशन नहीं है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक वर्कअप दैट एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुड हैव। कभी कभार आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन रिफर्ड विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन और उनके टेस्ट पे पता लगा कि ओहो तो डायबिटीज भी चल रही है और पता नहीं कब से चल रही है और अनडायग्नोज चल रही है। सो वहां से इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो पिक हुआ ही हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था। वो जब वर्कअप हुआ बाकी इसमें HbA1c होना चाहिए ब्लड शुगर के साथ। मोस्टली पेशेंट में एक्चुअली सिम्टम्स होते ही नहीं। एग्जैक्टली। इवन हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में 10-20% में, बाकी में एग्जैक्टली। सो वो मैं फातिमा मोरी में तो प्रोफेसर खलीकुर रहमान एंड्रोयूरोलॉजिस्ट जो हमारे हैं वो ऑब्वियसली ही गेट्स द मेन बल्क ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो वो अक्सर उनके पास जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है, कोई नया आया तो वो तो ये सारा वर्कअप करवाते हैं और वहाँ इतनी ज्यादा डायबिटीज निकलती है कि दैट्स अनइमेजिनेबल। तो वो डायबिटीज अगर निकल रही है किसी को न्यू ऑनसेट और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आता है और बाकी वर्कअप अगर उसका ठीक है तो ही जस्ट सेज कि नहीं, पहले आप इधर जाएं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, अपनी शुगर जो पता ही नहीं था इतनी शुगर है पहले उसको कंट्रोल करें, एंड वी गेट रियली वेरी गुड रिजल्ट्स बाय जस्ट ऑप्टिमाइजिंग देयर डायबिटीज कंट्रोल जो अनडायग्नोज थी। सो इट कैन बी द फर्स्ट प्रेजेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन अ नॉट नॉन डायबिटीज पर्सन कैन बी द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज एज वेल। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। Exactly. अब मेरे पास ये हफ्ता तो पहले की बात है, एक पेशेंट आई, वो अपनी एक लड़की को अपनी खाला को लेके आई, तो हाइपरटेंसिव थी, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम थे कि मैंने कहा कभी शुगर चेक कराइए, कहती है जी नहीं, रिसेंटली नहीं कराई, देखी तो शुगर 400 कुछ आ रही थी। वो कहती है जी मेरे मियाँ बाहर बैठे हैं, उन्होंने भी कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया, उनको बुलाया तो उनकी भी उतनी 400 से ऊपर अनडायग्नोज। कोई उनको दोनों को पता नहीं था कि डायबिटीज और हाइपरटेंसिव भी साथ था। तो देखें ये तो बिल्कुल, ये तो आपकी एवरीडे क्लिनिकल प्रैक्टिस है। तो अब तो हमारा जो भी डेटा अभी तक है हमारे पास, उसमें एवरी 4th पर्सन हैज टाइप 2 डायबिटीज पाकिस्तान में। सो इसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल की टाइमिंग किस वक्त करवाना है? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, बायोअवेलेबल टेस्टोस्टेरोन को बोलिए, अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक है तो टोटल टेस्टोस्टेरोन इज फाइन। वो फ्री टेस्टोस्टेरोन का ऐसे हर लैब करती नहीं है। अच्छा। और उसमें हर एक में कराने की भी जरूरत नहीं है। सो अगर कोई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट पे नहीं है पहले से और आपने उसका FSH और ये जो है प्रोलैक्टिन, LH और टेस्टोस्टेरोन को ना, ये जो बाकी 3 हार्मोन है LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ये हर हाइपोगोनाडल पेशेंट के इनिशियल वर्कअप में जरूर करवाने हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से तो हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि हाइपोगोनाडल है कि नहीं। जो बाकी 7 FSH और LH और प्रोलैक्टिन है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज देगा कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। सो ये साथ जरूर कराने। टाइमिंग रियली इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा सर का क्वेश्चन है। अगर कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं ले रहा, डायग्नोज नहीं है, तो प्लीज इट शुड बी अ मॉर्निंग सैंपल, प्रेफरेबली बिटवीन 8 to 9। उसकी वजह यह है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में इन ऑल ऑफ अस देयर इज अबाउट अ 25% वेरिएशन, 20 to 25% वेरिएशन एज द डे गोज ऑन। तो अगर वो 3 या 4 बजे हुआ है और लो और बॉर्डर लाइन है, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। वो आपको फिर भी 8-9 बजे ही कराना पड़ेगा, इससे पहले कि आप उसको हाइपोगोनाडल लेवल कर दें। अर्ली मॉर्निंग कराना। बिटवीन 8 to 9 बेस्ट टाइम। इवन अप टू 10 o'clock इज ओके। ठीक है। तो एज द डे गोज ऑन हम सबके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दे फॉल अप टू 25% फॉल आ जाती है। 25% एक अच्छी खासी बड़ी फॉल है, खास तौर पे जहां बॉर्डर लाइन रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग सैंपल। सो लिपिड प्रोफाइल का क्या रोल है? सर लिपिड प्रोफाइल का देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पीपल विल बी ओबीस, मोस्ट ऑफ देम मे नॉट बी डायग्नोज टू हैव डायबिटीज। अगर तो वो डायग्नोज है पहले से, कोई लिपिड प्रोफाइल और बाकी चीजें हुई हुई है तो फिर तो ठीक है, नहीं हुई हुई तो करा लें तो बेहतर है, क्योंकि आपको एक होल मेटाबॉलिक प्रोफाइल मिल जाएगी। और ज्यादातर लोगों में आपको मेटाबॉलिक प्रोफाइल सारी वो मिलेगी जो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मिलती है। वो यूरिक एसिड भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज्ड होगा, डायबिटिक भी निकल सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिक प्रोफाइल, इट्स नॉट अ मस्ट टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल से एथेरोस्क्लेरोसिस का कोई असेसमेंट हो सकती है कि पेशेंट के अंदर जो प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है किस लेवल पे जा रहा है? डायरेक्ट तो नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट हो सकती है, क्योंकि वी नो के हाइपरलिपिडीमिया इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। सो वो डायरेक्ट उस तरह से तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि आपको बाकी क्लूज मिल जाएंगे। अगर HbA1c भी बॉर्डर लाइन है, पेशेंट भी ओबीस है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल है और लेवल्स भी वही वो जो भी हम बात कर रहे थे बॉर्डर लाइन है,
टेस्टोस्टेरोन के, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको टेस्टोस्टेरोन दें. यू कैन एडवाइज लाइफस्टाइल एंड दिस एंड दैट एंड रीअसेस. हाँ, वक्ती तौर पे यू कैन गिव अ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर to help with the erections when and if required kind of stuff, but not long term. Testosterone तो long term है. बड़ी कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि अच्छा हम तुम्हें पहले ट्रायल देते हैं 3 या 6 महीने का और फिर रीअसेस कर लेंगे बंद करके. सो जो क्विक फिक्स है, जो उसको चाहिए, उसको इरेक्शन चाहिए, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर इज अ वेरी सेफ एंड अ वेरी गुड क्विक फिक्स व्हाइल ही वर्क्स ऑन हिज लाइफस्टाइल. सो जब आप टेस्टोस्टेरोन तो लो प्राइमरी में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा. अगर टेस्टोस्टेरोन के साथ FSH और LH मार्केटली रेज्ड हैं तो दैट मीन्स कि वो जो, अगर हमने वही जो पहले स्लाइड देखी थी फीडबैक मैकेनिज्म वाली, अगर FSH LH बहुत ज्यादा रेज्ड है इसका मतलब है प्रॉब्लम टेस्टिस में है और ये प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है या प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है. अगर टेस्टोस्टेरोन लो तो खैर दोनों में होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हो. FSH और LH भी लो हैं या इवन नॉर्मल रेंज में भी हैं, इसका मतलब है प्रॉब्लम ऊपर है या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में है, तो ये सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है. वेरी इजी टू इंटरप्रेट. सीरम प्रोलैक्टिन कुछ मेडिसिन्स भी बढ़ा देती हैं. हाँ जी, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉमनेस्ट कॉज प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स. देयर आर सम मेडिकेशंस, खास तौर पे एंटीमेटिक्स, कुछ एंटीमेटिक्स और एंटीसाइकोटिक्स और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि बढ़ा देती हैं. बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती लेकिन बढ़ा सकती हैं. सो अगर एक एक्सेप्शनली हाई प्रोलैक्टिन आपको मिल गया तो इट्स अ मस्ट. और साथ FSH LH को ये सप्रेस करती हैं. अगर वो नॉर्मल है, प्रोलैक्टिन बहुत ही ज्यादा है और टेस्टोस्टेरोन तो कम होना ही होना है, तो इट इज अ मस्ट के उसके पिट्यूटरी को भी MRI करा के देखा जाए. क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उसको एंटीसाइकोटिक पे, एंटी डिप्रेसेंट पे है, जो कि करती हैं, सारी तो नहीं करती, कुछ जरूर करती हैं, लेकिन जो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड है वो करती हैं ज्यादातर, लेकिन थोड़ा सा करती हैं. हाँ, थोड़ा सा करती हैं. तो अगर हम ये नहीं चाहते कि हम उसको लेबल कर दें कि नहीं एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड है और 3 साल बाद पता लगे कि ओए वो तो पिट्यूटरी ट्यूमर था जो मैंने उस वक्त मिस कर दिया. तो अगर बहुत एक्सेप्शनली हाई प्रोलैक्टिन है, चाहे पेशेंट कोई ऐसी दवाई पे भी है जो प्रोलैक्टिन बढ़ाती है, MRI जरूर करा लें. द थिंग वी डोंट वांट टू मिस इज अ पिट्यूटरी ट्यूमर. MRI होगा ना, नेगेटिव आ जाएगा, जैसे सब रीअश्योर हो जाएंगे कि अब दोबारा MRI की जरूरत नहीं है. और कभी भी एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक को प्लीज बंद ना करें प्रोलैक्टिन की वजह से. पेशेंट का प्रोलैक्टिन हाई होगा तो सब कोप कर लेंगे सिवाय पेशेंट के, लेकिन अगर उसकी एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक बंद होगी ना तो वो. लेकिन मैंने एक पेशेंट देखा है जिससे मैं बताया था, उसको मिल्क प्रोडक्शन हो गई थी. हाँ, बट इन कंसल्टेशन विद हिज साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि ये इनमें से कोई चीज भी अब्रप्टली विड्रॉ नहीं की जा सकती. अच्छा, सीरम प्रोलैक्टिन भी अर्ली मॉर्निंग कराना चाहिए? प्रोलैक्टिन किसी भी टाइम कराया जा सकता है. वो तो क्योंकि एक ही गो में सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं. टेस्टोस्टेरोन के अलावा किसी भी टेस्ट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट डायगोनल वेरिएशन नहीं है. प्रोलैक्टिन किसी भी टाइम कराया जा सकता है, एनी टाइम. इवन FSH LH किसी भी टाइम कराया जा सकता है. जिसको आपने टेस्टोस्टेरोन शुरू कराना है, जो क्लिनिकली बायोकेमिकली हाइपोगोनाडल है, यानी सिम्टम्स भी हैं और आपने हाइपोगोनाडिज्म भी डायग्नोज कर लिया एंड यू वांट टू स्टार्ट टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, क्योंकि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, यूजुअली कॉज जो है वो, अनलेस कुछ कॉजेज हैं जो रिवर्सिबल हैं, मसलन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, उसमें प्रोलैक्टिन को नीचे लाएंगे तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा. अदरवाइज इस तरह के 1-2 एक्सेप्शनल कॉजेज के अलावा मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म नीड लाइफ लॉन्ग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. सो 2-4 कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं देना चाहिए. वन ऑफ दम इज एक्टिव, जैसे कहते हैं ना, प्रोस्टेट कैंसर. देयर इज सम एविडेंस के कॉज का एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रोस्टेट है, आपको पता है अक्सर प्रोस्टेट्स ये बड़े बिनाइन से होते हैं, सो दे आर लाइक अनडायग्नोज्ड. सो यूजुअली एविडेंस ये कहता है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं, खासतौर पे अगर वो 60+ है, तो दे भी रहे हैं और नोन नहीं है कोई प्रोस्टेट प्रॉब्लम, फिर भी आपने PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कम से कम हर साल जरूर मॉनिटर करना है. तो दे डोंट कॉज प्रोस्टेट कैंसर देमसेल्फ, पर अगर कोई छोटा मोटा कैंसर पड़ा हुआ है जो आज तक सिम्टम नहीं कॉज किए तो दे कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ. तो अगर PSA एक खास प्रोजेक्शन से ज्यादा सीरियसली बढ़ रहा है तो बेस्ट टू स्टॉप टेस्टोस्टेरोन और यूरोलॉजिस्ट को कहीं एवेलुएट कर ले एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर. अदरवाइज जो बाकी हैं हेमाटोक्रेट और ये वो बहुत कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, खासतौर पे अगर इतने से ज्यादा हमारे अक्सर क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं. हेमाटोक्रेट पर करेंगे लैबोरेटरी. हेमाटोक्रेट मींस के विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. जब आप CBC कराते हैं उसमें हेमाटोक्रेट हर एक की आपको मिलती है. तो हेमाटोक्रेट क्योंकि
टेस्टोस्टेरोन कैन फर्दर इंक्रीज द विस्कोसिटी. टेस्टोस्टेरोन आपको पता है ना, आरबीसी प्रोडक्शन में भी तो इट आल्सो स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोइसिस. अगर किसी का ये जो है हेमाटोक्रेट पहले ही इस कट ऑफ से ज्यादा है तो ही और शी इज ऑलरेडी प्रोन टू हैव क्लॉट्स. उसके ऊपर से अगर आप टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं और आरबीसी मास और बढ़ा रहे हैं तो हेमाटोक्रेट और फर्दर होगा, तो जो क्लॉटिंग का रिस्क है आर्टीरियल क्लॉट्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आरबीसी मास इंक्रीज करके इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज करके हेमाटोक्रेट को फर्दर बढ़ाएगा, तो क्लॉट्स बन सकते हैं बोथ आर्टीरियल एंड वीनस, पर्टिकुलरली आर्टीरियल. एमआई, स्ट्रोक, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज. सो ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है. यही वजह शायद है कि लेडीज में मेनोपॉज से पहले जो पार्शली, कम है. हाँ पार्शली ये वजह है, पार्शली. ओके जी, सो नाउ वी कम टू द प्रोडक्ट वी आर डिस्कसिंग. अगेन एज आई सेड कि सबसे कॉमनली दुनिया भर में जेल ही इस्तेमाल होती है. ओरल टेस्टोस्टेरोन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, दुनिया भर में अवेलेबल. ओरल की एफिकेसी बहुत ही पुअर है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत पुअर है, इसलिए प्रेपरेशन अवेलेबल है. दिस इज प्रेफर्ड इसलिए कि ये पेशेंट खुद अप्लाई करता है. इट्स अ टॉपिकल जेल, नो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स. जेल है, हाँ डेली है, और दूसरे के एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छी है, एज गुड एज इंजेक्टेबल. कुछ और जो इसके हैं कि जी डोजिंग भी कोई बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है. 50 से आप शुरू करते हैं, वो भी हम उसको देखेंगे आगे. सो 1% जेल है, ये इसकी स्ट्रेंथ है. एडवांटेजेस इंक्रीज के ऑब्वियसली लेस इन्वेसिव, कोई इंजेक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है. और दूसरे ये कि इसके जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज प्रीटी गुड. सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, क्योंकि वो सारा जो है फर्स्ट जो हेपेटिक बाईपास और ये वो सारा बाईपास हो जाता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अच्छा जी, इफेक्टिवनेस जो है दैट इज प्रीटी गुड एज ऑलमोस्ट एज गुड एज इंजेक्टेबल. सो हमारे मुल्क में इशू ये है कि जो हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल है वो 250 मिलीग्राम वाला अवेलेबल है. सो वो आपको या 3 या 4 वीक्स बाद देना पड़ेगा. ठीक है, अब एवरी 3-4 वीक्स. और जो डेपो इंजेक्शन है, दूसरा इंजेक्टेबल जो दुनिया भर में अवेलेबल है वो डेपो इंजेक्शन है, दैट्स एवरी 3 मंथ्स. वो हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है. वो बड़ा कन्वीनियंट है मरीज के लिए, एवरी 3 मंथ्स इंट्रामस्कुलर इंट्राग्लूटियल लगना, बट नॉट अवेलेबल हियर. तो वी हैव बीन वांटिंग दिस जेल प्रिपरेशन फॉर क्वाइट सम टाइम. बड़ी वाइडली प्रिस्क्राइब होती है दुनिया भर में. इट्स गुड कि अब हमारे पास भी अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ टेस्टीवा. 1% स्ट्रेंथ है जी. जो यूनिट डोज पैक है उसमें 50 मिलीग्राम है. जो आप वाला है जी उसमें 50 का है ना. सो हमारे पास जो अवेलेबल है वो 50, इसलिए बाकी को हम स्किप कर सकते हैं. 50 से हम स्टार्ट करते हैं. एक जेल पैक जो है वो 50 मिलीग्राम का है. द मैक्सिमम डोज यू कैन गो टू डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. एक ही डोज इंक्रीमेंट इन्वॉल्व अगर करना पड़े तो 50 से आप जो है ना वो उसके 2 कर दें. दैट्स ऑल. 100 मिलीग्राम इज मैक्स डोज. तो कोई बहुत फ्रीक्वेंट टाइट्रेशन या वो इन्वॉल्व नहीं है. पेशेंट को जेल शुरू कराएं, 1 महीने बाद सिम्टम्स पूछ लें और एक लेवल करवा लें टेस्टोस्टेरोन का. देखें कितनी इंप्रूवमेंट है, क्लिनिकल और बायोकेमिस्ट्री में कितनी इंप्रूवमेंट है. दोनों में अगर गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की तो 50 से 100 कर दें. दैट्स द मेंटेनेंस डोज. टॉपिकली है, ये नीचे डायग्राम्स बनी हुई है. इन एरियाज पे इट कैन बी अप्लाइड मोर और लेस ऑल दोज एरियाज जिस पे इंसुलिन लगाई जा सकती है. तकरीबन वही सेम सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये जेल अप्लाई की जा सकती है. टॉपिकली है, वंस डेली है, यूजली मॉर्निंग. वाई मॉर्निंग अभी डिस्कस करते हैं. शोल्डर, अपर आर्म्स, एब्डोमिनल एरिया, प्रेफरेबली द सेम टाइम एवरी डे. 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाएं, नॉट अ बिग इशू. हमारे सिर्फ थोड़ा सा इशू जेल में ये है कि ये मसलन जो आजकल का मौसम है, ह्यूमिडिटी, इसमें जेल अप्लाई करना इज लाइक, बट ये 2-3 महीने हैं. अदरवाइज तो अर्ली मॉर्निंग इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी स्वेटिंग नहीं हो रही होती. सो अर्ली मॉर्निंग यूज. और एक तो और चीज़ें जो बिकॉज इट्स अ जेल एंड इट्स टेस्टोस्टेरोन और टॉपिकल है तो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो सकता है, मसलन फॉर एग्जांपल बच्चे या वाइफ. सो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट के क्योंकि बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो सकती है डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट से. ऑल्दो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं बट स्टिल इट इज पॉसिबिलिटी, इट इज नोन. So children and women should avoid contact with unwashed or unclothed application site. Patient should wash hands with soap and water immediately after application
and cover the application site with normal clothing. And before making any direct skin to skin contact, they should wash the application site. अगर application हुए हुए कुछ 4 घंटे से ज़्यादा हो गए या 6 घंटे हो चुके हैं, then it does not need to be washed because most of it is absorbed. If unwashed or unclothed skin comes in contact with skin of another person, then the general area of contact on the other person should be washed as soon as possible. ये है repeated contact हो, heavy exposure हो तो फिर थोड़ी सी skin to skin वो है कि उधर भी absorb हो जाएगी, लेकिन अगर accidentally हो गई है तो immediately if that person washes it away, it's fine. Safe है, बड़ी well tolerated है. Patient's adherence injection की निस्बत बेहतर हो जाती है फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए कि जो डेली वाली चीज़ होगी ना वो ज़्यादा वो एक हैबिट और वो बन जाती है. जो मंथली चीज़ है उसमें ईज़ है, बट पेशेंट प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है. एंड ऑब्वियसली इंजेक्शन इज इंजेक्शन, और जो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन है वो ऑयली होता है, इट्स प्रीटी पेनफुल, काफ़ी पेनफुल होता है. इसलिए हम यूजली कहते हैं कि बाजू में ना लगवाएं, बटक में लगवाएं, पेन थोड़ी कम होती है. वो ऑयली है, सो इट्स प्रीटी पेनफुल. सो an added advantage apart from bones and muscles and mood जो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन improve कर सकता है, improvement in bone mineral density. ये तो known है, validated है, tested, tried है कि bone mineral density को improve करती है. And people who are hypogonadal for a long time, their bone mineral density goes down, hence making them at risk of osteopenia and osteoporosis and hence osteoporotic fractures. So bone mineral density को testosterone replacement जो है ना, it improves it quite a lot. So this is where we can take questions because then I will need to rush off for my clinic. What is the price of this? Price बताएं जी. प्राइस बताइए. 100 रुपीज़ है पर सर. 100 रुपीज़ का एक सेशन. एक सेशन कितनी देर तक हम दे सकते हैं? ये तो सर लाइफ लॉन्ग भी दिया सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो जिसको प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टिकुलर फेलियर है, अच्छा. डिलेड प्यूबर्टी के साथ आया, वो टेस्टिस तो रिकवर नहीं होंगे. सो फॉर एंड्रोजन रिप्लेसमेंट ही विल नीड लाइफ लॉन्ग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, चाहे वो इंजेक्टेबल हो, ये हो. सेकेंडरी डायबिटिक्स में फॉर एग्जांपल, डायबिटिक्स में कुछ पेशेंट्स में जहां हमें फंक्शनल वो मिल रहा है और परसिस्टेंट मिल रहा है और बहुत सिम्टोमेटिक मिल रहा है, वहाँ पे जहाँ हम ग्लाइसीमिक कंट्रोल और वेट का वो कर रहे हैं बार बार, वहाँ समटाइम्स वी डू गिव अ ट्रायल से मुराद ये कि भाई हमें पता है फंक्शनल है, आप ये भी इम्प्रूव करें. सिल्डेनाफिल भी दे दी, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही और लेवल्स भी लो या लोइश हैं और माइल्ड है, हमें पता है कि फंक्शनल है, तो देन वी कैन गिव अ 3 to 6 month ट्रायल कि जी चलें इसको इस्तेमाल करके देख लें. इफ़ इट इज़ हेल्पिंग द सिम्टम्स वी कैन कंटिन्यू for a few years and then or a few months and then stop and reassess. क्योंकि अगर उन्होंने वेट लूज कर लिया, ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक कर लिया और टेस्टोस्टेरोन से हमने उतार लिया और उन्होंने चीज़ें मेंटेन की, तो अगली दफ़ा जब आप चेक कराएंगे लेवल्स वो बड़े ओके आएंगे क्योंकि फंक्शनल था. तो उसमें फिर रिप्लेसमेंट की वैसे भी इंडिकेशन क्लिनिकल नहीं रहेगी. अदरवाइज जो वही मैंने कहा जो परमानेंट कॉजेज हैं, सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, जो कि ज़्यादातर परमानेंट ही होते हैं सिवाय फंक्शनल के, जो कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, they need lifelong replacement. Lifelong replacement. खासकर बोन्स के लिए. हाँ जी, बोन्स की तो एडेड वो तो है ही है. सिम्टोमेटिक उसके लिए मूड, मसल मैस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड जनरल वेलबींग. क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है टेस्टोस्टेरोन देने से. जो डेफिशिएंट है, वो रियली डेफिशिएंट, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है. एथलीट्स यूज करते हैं? एटलीस्ट यूज तो नहीं, वो तो मिस यूज करते हैं. तो एनाबॉलिक है ना, एनाबॉलिक है. सो एनाबॉलिक है. लेकिन फिर एथलीट्स अगर लॉन्ग टर्म यूज करें, वो हम देखते हैं कई क्लिनिकल प्रैक्टिस उन्होंने लंबा अरसा यूज किया क्योंकि वो सुप्रा फिजियोलॉजिकल यूज है, तो उनकी जो अपनी एक्सेस है वो शट डाउन हो जाती है. तो जब वो इसको बंद करेंगे, उनकी जो अपनी एक्सेस है वो तो सो चुकी है क्योंकि उसको बाहर से इतना मिल रहा है. उनकी एक्सेस को जागने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं. उस दौरान फिर उनको टिका के हाइपोगोनाडल सिम्टम्स आते हैं. फिर वो हमें दोबारा आते हैं कि अब आप हमें फिर दें, क्योंकि जी पहले तो हमने नहीं दिया था, अब आप हमारे पास क्यों आए. एग्जैक्टली, पहले तो हमसे नहीं लिया था आपने, पहले तो खुद ही लिया था. फिर उनको ये भी होता है कि अगर आप एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा और बहुत सालों से ले रहे हैं तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होना शुरू हो जाता है.
आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंट्राटेस्टिकुलर आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, जो टेस्टिस के अंदर बन रहा है, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तो बल्कि स्पर्म्स को सप्रेस करेगा। वो जो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर बना रहे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो जो एथलीट्स बहुत साल बॉडी वेट बहुत साल बाहर से ले रहे हैं, उनकी एक्सेस भी सप्रेस्ड है, उनका स्पर्मेटोजेन दे इवन कम टू अस के लिए छोड़ भी दिया है, अभी भी इनफर्टाइल है। तो हम वही कहते हैं कि भाई यू वेट एंड वॉच, आपकी एक्सेस और वो सारा उसको टाइम चाहिए रिकवरी के लिए। ये लोग जिम जाते हैं, वो क्या क्या वो जो उनको सोल्यूशन वगैरह क्या उसमें भी कोई टेस्टोस्टेरोन वगैरह हाँ जी। देते होंगे दादा। बिल्कुल, उसमें सर ग्रोथ हार्मोन भी होता है, उसमें कईयों में इंसुलिन भी होती है, सब चीजें एनाबॉलिक वो है। मसल बनाने के लिए एनाबॉलिक है, ग्रोथ हार्मोन भी लेते हैं लोग, इंसुलिन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। स्टीरॉइड्स लेते हैं। हाँ। स्टीरॉयड। हाँ, स्टीरॉइड कम लेते हैं क्योंकि स्टीरॉइड के और बड़े साइड इफेक्ट होते हैं इसका। ये सारे जिम वाले लेते हैं। बस वो फिर आपको पता है कि जब भी फिर आप वो अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ इंटरफेयर करेंगे फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना। ये तो इन बेचारों की तो रिप्लेसमेंट है ना, इनका तो मसला है, इनकी तो हमें रिप्लेस करना है प्रॉब्लम की वजह से। तो जो सुपर एडेड है वो फिर व्हेनेवर यू इंटरफेयर विद नेचर, फिर नेचर खुद ही इंतकाम लेती है फिर। तो एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच जी। Thank you very much. मुझे इजाजत है, मैं अपने ठीक है।